Hello, morning everybody. Guys, please switch on mic and confirm the connection, please. Hello, morning everybody. Guys, am I audible clearly? Good morning, sir. Okay, yeah, morning, sir. Thanks. Okay. Last we were doing some string functions. And we ended up with customers' first name and last name. Not this one actually. Some pivot tables we were already done with, some visualization we are already done with. So more or less I am done with this thing, this data set. जो भी हमें करना था, you can try other things or different things you can do here is text to column तक हम देख चुके थे. Then there is something called remove duplicates. तो क्या कर देता होगा ये, जैसा नाम पे लिखा हुआ है इसके. It says remove duplicates. It deletes duplicate rows from a sheet. यानी यहाँ पर कहीं डुप्लीकेट रो आ रही होगी तो वो उसको रिमूव कर देगा. नाउ दिस इज समथिंग यू शुड नो. आई एम शोइंग यू इन अ डिफरेंट कि हम डुप्लीकेट एंट्री में किस चीज़ को कह रहा हूँ. Suppose there is a customer of something. His name is Alex. Then there are other customers. मेरे पास और customers का भी data है. And I again down below I say again first name is Alex. Anybody can confirm, is my audio clear? Can somebody confirm please?
sir, you are audible. Okay. Vibhor, seems like problem is at your end. ओके, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब था, मेरे पास कुछ डेटा चल रहा है कस्टमर्स का। आई नो कस्टमर्स, कस्टमर्स एज, कस्टमर्स सिटी एंड कस्टमर्स प्रोडक्ट द परचेज कस्टमर ने परचेज किया हुआ है, एंड द शिपर जो प्रोडक्ट को प्रोडक्ट को शिप कर रहा है, and maybe the quantity of the product, and maybe the date of the order, and suppose and many things. Duplicacy हम किसको कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं? Suppose there is a customer Alex and then there is again I see Alex. तो क्या बोलूँ? क्या ये डुप्लीकेट? इज इट डुप्लीकेसी? दिस इज ब्रिंगिंग अस टू अनदर एनोमली। एक एनोमली आप देख चुके हैं, कुछ एनोमलीज आप देख चुके हैं। केस मिसमैच हो सकता है, मिसिंग वैल्यूज हो सकते हैं। थर्ड डुप्लीकेसी is which we call duplicate records या duplicate rows। लेकिन डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हम कब कह रहे हैं? ऐसा नहीं कि यहाँ पर देखा एलेक्स और यहाँ पर भी देखा एलेक्स तो हम बोल दे ये डुप्लीकेट है। सही बात है ना? दी 3 rows 2 6 and 8 10 can they be, should they be called duplicate because the customer is Alex? हो सकता है ये कोई और एलेक्स हो। यस और नो? मे बी द केस दे आर डिफरेंट एलेक्सेस। तभी मैंने देखा अरे age is also 27 for all of them. Are they duplicate records? Yeah, right now. अरे मैंने देखा सिटी भी सबकी दिल्ली है। क्या अब ये डुप्लीकेट हो गए हैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स मैं कब बोल रहा हूँ इनको? जब पूरी की पूरी रो डुप्लीकेट हो जाए, देन आई थिंक दे आर डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। ये सेम एलेक्स हो सकते हैं, ऑन एन ऑड चांस दे मे बी डिफरेंट एलेक्स ऑल्सो। There may be same Alex also, but they may be different products. There may be different orders on a different date. Yes or no? The same customer can place 2 orders, no? तो डुप्लीकेट कैसे होगा वो? हाँ, अगर सब कुछ ही रिपीट हो रहा है, now it becomes a curious case. If this is iPhone and this is some shipper name, whatever you want to call it, and one, हाँ iPhone एक आ जाए वही बहुत है, and maybe the date is something, or whatever the date be.
और भी आगे जितनी भी एंटिटी हैं, अगर मैं कहूँ ये सब कुछ ही रिपीट हो रहा है, everything is repeating, everything is same. Now it seems like duplicate record. Now there is a suspicious case. एक दो एंटिटी देख करके मैं नहीं कह सकता कि ये डुप्लीकेट हो गया. So now it has become a duplicate row entirely. So that's what happens when I select this data and I click remove duplicates. It is asking me select all. Do you want to select all? So by default हाँ select all होना भी चाहिए. And then I click OK and it will remove the duplicate rows. अभी वहाँ पर मत कर लेना, कर यहाँ पे भी सकते हो. अभी वहाँ पे नहीं किया, उससे पहले मैं कुछ पूछना चाह रहा था. दिस इज डुप्लीकेसी. अभी हमने समझा व्हाट इज डुप्लीकेसी एनोमली. When entire rows are repeating, one or more rows are repeating multiple times, one or more times. That is the problem of duplication. तो ऐसी rows अलग भी हो सकती हैं. There is Alex, there is Barbara. तो उसके लिए भी कुछ rows repeat हो रही हैं. ये तो प्रॉब्लम हुई डुप्लीकेसी की. मैं अब आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि डुप्लीकेसी प्रॉब्लम क्यों है. मुझे क्या दिक्कत है डुप्लीकेसी. डुप्लीकेसी है, होती रहे. मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है ना. अपर केस लोअर केस मिसमैच भी नहीं हो रहा है. Anybody can think of any reason? Any good reason due to which duplicate records are a problem? Yes, sir. You may switch on mic, please speak. So for example, like sale, we like send more than 2 times same quantity, and at the time of total amount, it will also affect it. It is also a very big problem in the data that duplicate makes. So yeah, this is a big problem. Okay, very fine, Sarthak. Anybody else? या सार्थक ने जो बताया उससे कुछ समझ आ रहा हो आप लोगों को? देखो डुप्लीकेसी होने का, इफ देयर आर डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फायदा तो कुछ है नहीं. फायदा कुछ नहीं है बिकॉज इट इज नॉट गिविंग एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन. कोई नई इन्फॉर्मेशन तो नहीं आ रही. वो पूरा वही रो जो पहले मेरे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी वही रिपीट हो गई है. तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड होने से कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो फायदा तो कुछ है नहीं. नुकसान क्या है? एक छोटा सा नुकसान जो शायद यहाँ देख करके नजर नहीं आएगा. आपका डेटा बल्कि हो रहा है. ये जो एक रो थी ये 3 बार रिपीट हो गई. दिस डेटा इज गेटिंग बल्कियर. और कहाँ प्रॉब्लम होने वाली है? व्हेन आई विल बी एनालाइजिंग दिस डेटा, वॉट एवर आई विल डू विद दिस डेटा, इट इज गोइंग टू कॉस्ट मी टाइम, अननेसेसरी टाइम.
अभी तो तुमको बोलोगे अरे सर कहाँ फ़र्क पड़ रहा है, अभी बनाया देखो पिवट टेबल, 1 सेकंड में बन जाता है। हाँ, अभी 1 सेकंड में बन जाएगा। आई एम नॉट इसलिए नहीं कि एक रो 3 बार रिपीट हो रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स और मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड, और वहाँ पर डुप्लीकेसी है। इफ यू कैन इमेजिन दैट a data set with 50 columns with thousands of rows, a data set with maybe 100 columns and millions of rows, वहाँ पर you will see considerable time going there. इससे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को जो है वो ये है जो सार्थक ने बताने की कोशिश की। द प्रॉब्लम इज, सपोज यहाँ पर होता ऑर्डर अमाउंट, आईफोन आ गया 1 लाख, लेकिन दोबारा रिपीट हो गया 1 लाख एंड फिर रिपीट हो गया 1 लाख। दिस रिपीटिशन ऑफ दीज वैल्यूज विल फ्लंक आउट द स्टैटिस्टिक्स। मैं इस ऑर्डर अमाउंट कॉलम का जो भी कुछ वैल्यू देखना चाहूँ, चाहे मैं देखूँ सम, चाहे मैं देखूँ मीन, चाहे मैं देखूँ स्टैंडर्ड डेविएशन, चाहे मैं देखने लगूँ वेरिएंस, चाहे मैं जो भी देख रहा हूँगा, बात समझ आ रही है? It will deviate from what it should have been actually, because this is repeating again and again repeating. Making sense? Yes or no? बात समझ आ गई ये वाली? जल्दी बोलिए सारे सारे। So this is another anomaly which you should take care of. तो यहाँ पर क्या ऐसा हो सकता है? पता नहीं मेरे को, हो भी सकता है। Because हाँ, चल तो ऐसे ही रहा है। देयर इज समथिंग इनवॉइस नंबर। अब इनवॉइस नंबर तो हाँ बार बार आ भी सकता है मेरे डेटा में। भाई सेम इनवॉइस नंबर में अगर कोई और प्रोडक्ट भी उसने खरीदा होगा तो वो इनवॉइस नंबर रिपीट हो जाएगा ना। बात तो सही है। प्रोडक्ट कैटेगरी हाँ बिल्कुल विल ऑब्वियसली रिपीट हो रही होगी। किसी ने ये खरीदा होगा, किसी ने वो कैटेगरी का खरीदा होगा, और ओके मल्टीपल कैटेगरीज से प्रोडक्ट बार बार खरीदे जा रहे हैं। स्टॉक कोड हाँ एक प्रोडक्ट बार बार भी बिक सकता है, डिस्क्रिप्शन भी रिपीट हो सकता है, तो सब कुछ रिपीट हो सकता है। मे बी आई शुड टेक केयर ऑफ डुप्लीकेसी। तो हाउ डू वी डू दैट? सेलेक्ट ऑल, as simple as that. You can click somewhere and control A, so that is one method. So it will select wherever your editor has gone, or you can simply click on this cross section and from data you remove duplicates. It will say on the basis of which columns it should consider duplicacy. Column OP, I don't know why they are there, perhaps वहाँ पर editor पहुँच गया होगा, तो for now okay चलो ले लेते हैं। So a good idea is to select all the column headers and okay. And as it happens, it says there were 90 duplicate values found and removed. Now my data is, I am certain that it is free from duplicate rows. You see, it is struggling. It is taking quite some time. Because this is a data set of some 10, 12 columns and a few thousand rows. इतना भी नहीं लेना चाहिए था, पर ठीक है।
So these are the things which can be done. Then there are something called remove duplicates ho gaya. There is data validation, consolidate, what if analysis. I am not going into that because you have seen a better way to do these things. Group, ungroup, subtotal. You have already seen that in pivot tables. So there are similar methods. This can be done, grouping it by a category and then checking those. But it is in a way it is rather primitive method than pivot tables. So pivot is better than this. Otherwise, you can explore by yourself. You can try to do this. Here in the last, there comes in the data, there comes data analysis. Some of you will not see that. Can you see that? There is data analysis tab. Everybody sees that? If I click on data analysis, you will see it gives you several options for statistical tests. There is ANOVA सिंगल फैक्टर, ANOVA टू फैक्टर. अभी घबराना नहीं है इनसे कि ये क्या क्या होते हैं, वो बताऊंगा क्या क्या होते हैं. कोरिलेशन, कोवेरियंस, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स. भाई देख पा रहे हो ना ये? इफ आई क्लिक ऑन दैट, यहाँ पर ऐसा पॉपअप आ जा रहा है. बहुत सारी चीज़ें हैं. फॉरियर टेस्ट, टी टेस्ट, जी टेस्ट, रिग्रेशन. There are so many statistical tests which can be done over here within Excel itself. So much of the stats we can do here itself. So which one कौन सा करके देखें? चलो इनमें से दूसरा डेटा भेजता हूँ आप लोगों को. बट यू नो कि यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. बिफोर गोइंग टू समथिंग एल्स, एक चीज़ और देख लेते हैं जो कभी कभी बहुत ही काम आती है. कमिंग टू दिस, चलो इसी पे करके दिखा देता हूँ. I think you guys can see my screen. Huh? Anybody interested in stock market? ऐसा है कोई? Anybody who takes
interest in stocks. Am I audible now? Yes, sir. Okay. Okay. I thought you don't want to tell me, so I started off with Wikipedia. Actually, my intention was I was asking you that which website or which screener you use to track a stock. That is why I was asking who are doing it. Only if you want to. No, seriously. Okay. So the purpose was I wanted to show you that if suppose you are doing something and suppose you wanted to track that, although for stocks it will not make much sense that you analyze differently on Excel because they already have given you certain facilities. But suppose I am just surfing here. I am just going through this link and I find out that this seems like a interesting data set. And maybe if only if I can get it in Excel, maybe I can do something about it. So a method to do that could be what? Maybe I will try to copy paste it. Copy everything from here, scroll up to the last, and if it goes fine, maybe I will be able to copy it.
A rather better method is that I go to Excel, to a fresh sheet, a new sheet, coming down to data tab, and initially it gives me from access, from web, from these are data connections. These are called data connections. I can directly connect to a data source. So suppose I click on web. Access is the access server. From text is well not making much of sense here. Web and other sources. What can be other sources? You see there are umpteen number of options. Your Excel can directly connect to any SQL server, Windows Azure, the cloud by Microsoft, ODBC, OData जिसको बोल देते हैं, okay, and of course web. So clicking on web, by default it shows me an option. Let's remove this link. And the link जहाँ पर मेरे को वो डेटा सेट मिला था, यहाँ पर मिला था. Let's copy this link. और वापस एक्सेल पे आते हैं. आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैं क्या क्या कर रहा हूँ? आई थिंक सो. और यहाँ पर जो न्यू वेब क्वेरी के लिए उसने बोला था, आई पेस्ट दैट एड्रेस एंड गो. ये कुछ एरर्स देगा बिकॉज कुछ चीज़ें देयर विल बी थिंग्स विच कैन बी रेड इन एक्सेल, देयर विल बी थिंग्स विच कैन नॉट बी रेड इन एक्सेल, लाइक देयर मे बी सम इमेजेस, देयर मे बी सम GIS. So okay, I'm not worried about it. I just want that table. So it will ask you, do you want to continue? I'm saying yes. Despite the errors, I'm saying yes. Once it is done, it will give me option that import, and I'm saying import. And it is preparing a sheet for me. It is saying, where do you want to import this data? Of course, existing worksheet. I can choose a new worksheet if I'm not comfortable here. And I say, okay. I just want to show you the big picture. What it has done, depending upon its own interpretation, it has tried to fetch whatever was written there on that web page. It has tried to fetch that in Excel in tabular form. Now I don't know whether it has done the job. I am just hopeful that perhaps शायद कुछ हुआ होगा. Text, text, text. Finally happened. You see that? This was the place which I was interested in. This was the data which I was interested to find. Country, the territory, the place, first lockdown, start date, end date, length of days, second lockdown, start date, if there was any second lockdown, if there was any third lockdown, and all of that data in tabular form, whether it was on national level, whether it was on regional level or city level. So this is the place which I wanted. Nice. Yes or no? What else?
बाकी सबका क्या करने का, कुछ नहीं, क्या ज़रूरत है, मेरा इंटरेस्ट यही था, तो कंट्रोल, shift up, select everything, delete it. I don't need any other data. Maybe adjust. अच्छा, नीचे भी होगा ना डेटा. After all this tabular form, there will be other data also. मेरे पास वो सारा टेबल. अच्छा हाँ, this is, here it is. So after Zimbabwe, there were some footnotes. So again, what do I do with them? Nothing. I don't need them. My goodness, there are so many. ठीक है जी. Sometimes it will be very clean, sometimes it will not be very clean. It will depend on your Excel version also. Mine is 2013. I had seen with students, the students who had latest version of 2017 or 20. उनमें एक्सेल में क्या हो रहा है, एक्सेल इज ऑटोमेटिकली ओनली चूजिंग टेबुलर डेटा. ये जो बाकी टेक्स्ट है वो अपने आप ही इग्नोर कर देता है. इट इज only fetching the tabular data whichever present in tabular form. So Excel has come to this level. Seems nice, good enough. ट्राई कर लिया आप लोगों ने या करने का है? अरे बोलो यार, बात कर दे रहा हूँ मुझसे. डड क्यों हो जाते हो तुम लोग? स्पेशली दिस वन. ये मैं तुम्हें स्टॉक्स वाला वो दिखाने को आया, नहीं तो स्टूडेंट्स really get pumped up by this time. Okay, अपूर्व is done. कौन सा टेबल बनाया अपूर्व? यही वाला, कोविड-19 लॉकडाउन. ओके, चलो ठीक है. तो आई होप फैंटास्टिक. So you can get data from online sources directly to Excel, and now you can further analyze whatever you want to do with that data. A good thing is there is something called, there is connections. If I click on connections, it will show me what if there is any connection which I am using. So can share connection. So you can see what connections are already being used. So one connection is this. So there can be multiple connections also in the same sheet, in the same workbook. There can be multiple connections. One can be with a text file, one can be with a web source, one can be with a SQL source. Umpteen number of connections can happen at the same time. Excel can handle that. Another good thing, it gets better, specifically like things which are like stock price or like mutual fund kind of thing. When your data is updating on a daily basis, or maybe on an hourly basis, or maybe on every minute basis, maybe the case.
यस और नो? स्टॉक्स का डेटा अपडेट हो जाता है? हाँ जी, देवेश, सार्थक, आस्था, व्हाट इज द टैप टाइम? व्हाट इज द टैप टाइम? कितनी देर में चेक करना चाहिए स्टॉक का डेटा कि स्टॉक का प्राइस चेंज तो नहीं हो गया? मालूम है? You guys doing stocks, for trading purpose or investment purpose? Investment purpose, they people don't have to worry. They people should not even call के हम स्टॉक्स में कुछ करते हैं। मत करो, इससे अच्छा है तुम कुछ नहीं करते हो, तुम लेके बैठ जाते हो। हाँ जी, so if I'm having you know the liberty is the tap time is 1 second, हर सेकंड पे भी चेंज हो सकता है। हालांकि होता नहीं है बट ठीक है, अपडेट तो होना चाहिए एंड ऑफ कोर्स डेली बेसिस पे तो होगा ही होगा। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। अब ये तो लॉकडाउन का डेटा है तो ये तो नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी दिखा दे रहा हूँ। सपोज कोई ऐसा डेटा है जो आपका डेली बेसिस पे अपडेट हो रहा होगा, तो वो जो वेबसाइट जहाँ पे आप देखते हो वहाँ पे वो डेटा अपडेट आ गया होगा। अगर वो अच्छी वेबसाइट है, इफ़ इट इज़ अ गुड ट्रैकर, सो इट विल अपडेट फ्रीक्वेंटली। लेकिन वहाँ पर एनालिसिस के लिए आपको पावर नहीं मिल रहा है, तो एनालिसिस करने के लिए आप एक्सेल में उसको कनेक्शन बना लिया। अभी आपको बार बार वहाँ से वो डेटा फेच करने की ज़रूरत नहीं है, कनेक्शन बन चुका है, वेब पेज वही है। इट इज़ से HDFC's टैब ऑन ET मनी वेबसाइट, तो HDFC तो HDFC रहेगा, तो वेबसाइट का लिंक हमेशा वही रहेगा। यू डोंट हैव टू चेंज इट, you don't have to fetch it time and again, you just have to refresh your connections. It will say refresh all, बता रहा है वो क्या होगा। You can refresh the current sheet, you can refresh all the sheets, all the connections, so whichever way you want. तो कुछ अच्छी बात होगी, कुछ खराब बात भी होगी इससे। वो दोनों देख लेते हैं क्या होगा। अच्छी बात तो ये होगी कि डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। जब मैं पहली बार ये डेटा फेच किया था, इफ़ इट हैज़ चेंज्ड विद इन दीज 5-10 मिनट्स, अगर कुछ चेंज हुआ होगा, दैट चेंज इज नाउ हेयर। खराब बात क्या है, जो फालतू डेटा मैंने हटाया था अभी वो वापस आ गया है, क्योंकि वेब पेज पे वो डेटा है अभी भी, और तुमने कर दिया रिफ्रेश, यानी करंटली जो वेब पेज है वो दोबारा ले आओ, वो ले आया दोबारा सब कुछ। ठीक है, बट स्टिल इट इज फैंटास्टिक यूटिलिटी। वी कैन थिंक सम वर्क अराउंड दिस। ये जो अननेसेसरी डेटा आ रहा है, आई कैन हाइड दीज सेल्स, हाइड दीज कॉलम्स, हाइड दीज रोज, कुछ ना कुछ मैं सोच सकता हूँ इन चीज़ों के बारे में, एंड आई कैन गो अहेड विद द डिजायर्ड रिजल्ट। हाँ जी, साउंड्स गुड, मस्त है एक्सेल, है ना शानदार एक्सेल। ये दिमाग में नहीं आया किसी का अभी तक कि एक्सेल इतना काम कर ले रहा है, फिर आर पाइथन की जरूरत ही क्या है। और आर यू वंडरिंग कि अगर एक्सेल से ये सब हो जाता तो आर पाइथन से क्या क्या होता होगा, या कीप वंडरिंग टिल यू कम अक्रॉस पाइथन।
and then I will meet again in hours. अरे तुमने अभी देखा ही क्या है बालिको, देखो क्या क्या होता है तुम्हारे साथ अभी। अभी तो 6 महीना हुआ हमारे पास। चलो यार, दिस इज इट। So this was all in all your data tab, which gives immense power. अभी तक और भी बहुत सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, कैलकुलेटेड फील्ड, functions, insertable functions. But when it comes to data, there are several anomaly removal tools. There are some string manipulation. There are some things like data validation, consolidate. ये आप explore कर लोगे, what if analysis kind of thing. ये all in all this can be done with one single pivot table. ये जितनी भी कहानी है इसके बाद, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। डेटा एनालिसिस अभी बाकी रहता है, उसके लिए मेरे को कुछ और चाहिए। इसके आगे कुछ विशेष बचता नहीं है। रिव्यू, व्यू, so these are just ways to view and review the data set. Something protect sheet, protect workbook. This you can again explore by yourself. This is just about setting some encryption to your data set. Sometimes you will require that. कभी कभी rarely, कभी कभार होता है that what maybe you want to protect it and you want to set a password kind of thing can be done. बचा डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के लिए हमें लगेगा एक दूसरी तरह का डेटा। Okay, let's do it this way, guys. Let's take a break of 10 minutes, okay? And I'll resume at 10:10, 11:10. Meanwhile, I will find a suitable data set for going further, okay? Don't leave the meeting. Don't leave the meeting. I need to mark attendance, okay? Okay, guys. See you there. Guys, hi again. Those who are back, please ping in the chat box. You know the drill. Everybody, those who are here, please ping in the chat box. Guys, give me a go ahead. Okay, 5 people. 5 guys there. Only 5 people. What are you up to, people? Are you waiting for the classroom contact? This will keep happening.
Just give me a moment. I'm trying to share another data set with you people. They're in the chat box. डाउनलोड कर लीजिए. You are EGF 15 to 30th today. And guys, tell me when you are ready. Okay. What about others? Ready? This data looks something like this. So this is one more thing I would like to discuss with an Excel module, and then rest we will build upon when we will come to further advanced tools. See, the idea here is establishing a correlation. I'm giving a few names here and tell me if some things we have already talked about. Mean, median, mode, ये क्या क्या होते हैं थोड़ा थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था. Then there are some things called variance, standard deviation, quartiles or percentiles. कुछ है जानकारी इनके बारे में? कुछ सुने सुने नाम लग रहे हैं ये, या बिल्कुल नहीं सुने? Just give me a minute, guys. I'll resume in a minute. Please stay.
Okay, guys, I was talking about some statistical terms. So some of you are familiar with. What about others? Nothing? Not at all? Apurva and Arjuna seem comfortable enough. Vaishali, okay. Astha, Vibhor, Devesh, Sarthak, what do you say about it? Okay, Sarthak is good with that. Okay. चलिए स्टैटिस्टिक्स की बात थोड़ा सा रुक के करता हूँ बिकॉज अभी फिर हाँ फार्मूला एटसेट्रा फिर हम इसमें डीप चले जाएंगे. What is the idea behind here is many a times there is something called correlation. Correlation. And to calculate correlation, there is a direct function correl in Excel. It is asking array 1. So this is the array 1, comma array 2. What is the array 2? Array 2 is this. And it is saying there is a very high correlation between them. मुझे कैसे पता चल रहा है very high? Correlation होता क्या है? Correlation is how these two are correlated. Array 1 is marketing budget, array 2 is actual sales. The analogy here is suppose there is a company who is recording their marketing budget and their sales. भाई क्या होता होगा? Suppose there is a company they manufacture say laptops. तो उन्हें कुछ मार्केटिंग करना पड़ता होगा अपने प्रोडक्ट का, उसमें कुछ खर्चा होता है उनका, एडवर्टीजमेंट, टिपिकल एडवर्टीजमेंट्स, यूट्यूब पे ऐड आ रहा है, टीवी पे ऐड आ रहा है, पेपर में ऐड आ रहा है, न्यूज़पेपर में होर्डिंग्स लग रहे हैं कहीं पे, यस और नो, रेड लाइट क्रॉसिंग्स पे. सो इट ऑल कॉस्ट्स मनी. सो दैट इज मार्केटिंग बजट. वो कंपनी ने सोच रखा है कि हमें कितना बजट लगाना है. एंड या इवेंचुअली दे आर मेकिंग सम सेल्स ऑल्सो. वो कुछ सेल्स भी कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं अपना प्रोडक्ट, बिक जाता है कुछ. एंड दे आर रिकॉर्डिंग दिस डेटा से मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर, कि बजट इतना था, सेल्स इतना हुआ, बजट इतना, सेल्स इतना, बजट इतना, सेल्स इतना. बजट इज इन लैक्स, सेल्स इज इन क्रोर्स. Budget in lakhs, sales in crores, and they keep on recording this. तो correlation क्या बताता है मेरे को? Correlation is telling how these two are correlated. क्या ये बढ़ता बढ़ता जाता है तो क्या ये भी बढ़ते बढ़ते जाता है? If this increases, whether this also increases, क्या ऐसा ट्रेंड है? So that is called positive correlation. ठीक है. I don't know whether I will be able to find a suitable one. Okay, I got it. म्हणजे एक वेरिएबल बढ़ता जाता है तो क्या दूसरा भी बढ़ते बढ़ते जाता है? तो दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन. और कैसा हो सकता है कोरिलेशन? इन दिस केस इट इज पॉजिटिव. कोरिलेशन का रेंज होता है -1 to +1. So this is very close to 1 +1, 0.095. That means it is a very strong correlation and on the positive side. यानी ये बढ़ते बढ़ते जाता है तो वो भी बढ़ता बढ़ता जा रहा है. नाउ इट डज नॉट मीन कि सेम रेशो में बढ़ेंगे. इट डज नॉट इम्प्लाई सेम रेशो. If it increases 5-fold, then it will also increase 5-fold. No, the folds may be different. Then there may be negative correlation. नेगेटिव भी हो सकता है. वो कैसा होता होगा? हाँ जी, कैसा होता होगा?
कि एक बढ़ता बढ़ता जा रहा है और दूसरा डिक्रीज होते चले जाए। एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज हो जाता है, सो दैट इज नेगेटिव कोरिलेशन। So then this correlation value ये जो कैलकुलेट किया है, it will look like a negative thing, minus something, minus towards 1, -1 की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, और कैसा हो सकता है? और तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं नो कोरिलेशन और एटलीस्ट वीक कोरिलेशन। वो कैसा होता है जी? ये बढ़ता जाए या घटता जाए पता नहीं, हमारे दूसरे वेरिएबल में उसका कुछ अपना ही माहौल चलता है। That will sit something like, you know, it will tend to 0 के आसपास रहने का कोशिश करेगा ऐसा कोरिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक प्रोडक्ट है किसी कंपनी का और वो उसकी दवा के मार्केटिंग करते हैं, दे आर एग्रेसिवली एडवर्टाइजिंग इट, तो व्हाट डू यू थिंक सेल्स पे कैसा इम्पैक्ट आएगा इसका? बजट का सेल्स पे कैसा इम्पैक्ट आएगा? आई थिंक पॉजिटिव ही आएगा, नहीं क्या? यस और नो, नेचुरल लगता है कि नहीं लगता? नेगेटिव कोरिलेशन कैसे केसेस में आपको देखने के लिए मिल सकता है? लाइक डे टेम्परेचर्स and sales of woolen clothes. I am recording day temperature, everyday temperature throughout the year, और मैं मेरा प्रोडक्ट है woolen clothes. What will happen? Yes or no? As the temperatures will move from winters to summers, my sales will decrease, no matter what I do. Right? I hope makes sense. और क्या हो सकता है? You can see weak correlation या no correlations in some things. Now, well, that is that can be very general. जैसे, can you think of something? Can you think of something जहाँ पर no correlation आ जाता हो? Anything which is yeah. हाँ, seemingly यार, अगर मैं डे टेम्परेचर से कंपेयर करने लगूँ लैपटॉप सेल्स, so okay, day temperatures are increasing every day in my data. What will happen to sales? क्या सेल्स का कोई कोरिलेशन दिखेगा इस बात से? If my product is laptop, I hope you are able to
correlate, able to get the gist. तो हाँ, लैपटॉप सेल्स पे और बहुत सारी चीज़ों का फर्क पड़ सकता है, लेकिन डे टेम्परेचर से तो कोई लेना देना नहीं दिखेगा मेरा. So usually it will be not correlated. You will see zero correlation or very near to zero. Weak correlation, very weak correlation. Now, what is the idea here is that we are going towards forecasting basis this correlation thing. और दिखा देता हूँ, अभी समझ नहीं आएगा लेकिन बता देता हूँ ये correlation आता कहाँ से है. This is the formula of correlation. This one. Correlation is represented by R. The correlation between X and Y is equal to this. Xi minus X bar is mean, Yi minus Y bar, this is mean. ये थोड़ा सा स्टैट्स कर लेंगे तब समझ आएगा. बट हाँ, मतलब होता है, अभी फिलहाल यही समझ लो कि होता है. कमिंग बैक, तो कोरिलेशन मेरे को मैनुअली कैलकुलेट नहीं करना पड़ता. अच्छी बात यह है कि मेरे को मैनुअली कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं. तो वी विल ट्राई टू लीवरेज दिस कोरिलेशन फॉर आवर फोरकास्ट. नाउ हम क्या करें, मार्केटिंग बजट हमारे पास है एंड एक्चुअल सेल्स हम करते जा रहे हैं. एंड थिंक अबाउट इट, इफ वी आर रिकॉर्डिंग दिस डेटा फॉर क्वाइट सम टाइम, दिस इज अ डेटा सेट इन इट्स, अपने आप में एक डेटा सेट बन गया. यस और नो, यस और नो. एंड नाउ बेसिस दिस डेटा मुझसे क्या कहा जा रहा है कि मिस्टर और मिस एनालिस्ट, आपके पास ये डेटा है पिछले, it is more than 1 year, in fact more than 1.5 years, 17 months. In the 18 month, well, marketing budget वो तो हमें पता होगा कितना रखना. यस और नो, मार्केटिंग बजट रखना वो तो कंपनी के हाथ की बात है. हम तो क्या कह रहे हैं कि मार्केटिंग बजट रखेंगे हम 250 lakhs, और ये डेटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है कि इस महीने मार्केटिंग बजट इतना रखा था तो सेल्स इतना हुआ, बजट इतना, सेल्स इतना, बजट इतना, सेल्स इतना, और इतना इतना बजट, इतना इतना सेल्स, ये सब हो रहा था. एंड यू हैव ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा ऑफ 17 months. In the next month we are trying to keep marketing budget 250. हमारा बजट कुछ इतना रहने वाला है. Can you give me a fair idea what is going to be sales? क्या आप बता सकते हैं कि सेल्स कितना होने जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली? माइंड यू, इसी को फोरकास्ट कहते हैं. दिस इज फोरकास्ट, और रादर मोर टेक्निकल एंड स्पेसिफिकल टर्म वुड बी प्रेडिक्शन. So how do we do this in data science terms? This variable, भैया कहाँ से आ गया? This variable marketing budget, जिसके बेसिस में मैं प्रेडिक्ट करने जा रहा हूँ, is called predictor, because according to this I will be predicting, and it is represented by x, and this is called target variable, जिसको मेरे को प्रेडिक्ट करना है. This is represented by y. So some technical jargon, लेकिन पता होने चाहिए आपको किसको क्या कहते हैं. आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं. देखो, दिस इज x वेरिएबल, दिस इज y वेरिएबल.
अगर मैं इनका एक ग्राफ बनाने लगूँ तो कौन सा बनाऊँ? आई वॉन्ट टू इंसर्ट अ ग्राफ। हमने अभी सोचा था कि ग्राफ बड़े अच्छे होते हैं, बहुत कुछ बता देते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ ग्राफ जो सुटेबल रहेगा इन ऐसे वेरिएबल्स के लिए? एक्स एक्सिस पे मेरे को रखना है मार्केटिंग बजट, वाई एक्सिस पे मेरे को रखना है एक्चुअल सेल्स। तो कौन से टाइप का ग्राफ बनाऊँ इनमें से? हम दिमाग नहीं लगा रहे, मैं पहुंचा रिकमेंडेड चार्ट्स पे और वो मेरे को कुछ दिखाने लगा। आप लोग कर रहे हैं मेरे साथ साथ? यू गाइस डूइंग अलोंग? ओके, रिकमेंडेड चार्ट्स पे पहुंचे तो हम क्या देखते हैं, उसने पहली रिकमेंडेशन उसके हिसाब से है दैट दिस शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय स्कैटर प्लॉट, एंड इट सीम्स इट लाइक मेक सेंस। दोनों ही एक्सेस पे आपके नंबर वेरिएबल्स हैं, नन ऑफ देम इज कैटेगरीज। सो दोनों एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में, रिमेंबर जो बेसिक ज्योमेट्री पढ़ा था आपने 9th-10th में आया था, अरे कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, और सब पॉइंट बन जाते हैं। तो ये सारे मंथ, मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, ये डेटा पॉइंट्स बन जाएंगे इस ज्योमेट्री पे, x1 y1, x2 y2, x3 y3। यस और नो? अरे इसमें तो कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए आई थिंक। मतलब मैथ्स 10 तक तो था, यहाँ तक तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं हो रही। तो ये डेटा मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा। सही है, एक्स एक्सिस पे मार्केटिंग बजट चल रहा है 550 लाख, 100 लाख, 150 लाख, और जैसे जैसे मार्केटिंग बजट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सेल्स, इधर हम देख रहे हैं सेल्स बढ़ता जा रहा है। तो हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन इसमें दिखाया था। हमारा पर्पस क्या है? फोरकास्ट करना। तो क्या फोरकास्टिंग के लिए हम कर सकते हैं? हाँ, कुछ कर सकते हैं। If I click on this chart, there are some 3 options here coming. आपके पास भी आ रहे होंगे। There is plus, there is a brush sign, there is a filter sign, funnel। ये funnel दिखाता है आपको कुछ ये सारा इंक्लूड करना है या कुछ ड्रॉ करना है। This brush sign, paint brush sign, this is just to choose what kind of chart you want to see. So there can be, different styles and colors, so whichever you want. So okay, just to make the chart beautiful, but not serving my purpose. Then there is plus sign. If I click on this plus sign, it gives you liberty to insert axis to खैर आएंगे ही, but you can give titles to axis. Which axis do you want to call what? Charts title, by default it is showing something, it is calling actual sales in crores, but you can edit it. डेटा पॉइंट्स आप देख सकते हैं, क्या क्या डेटा पॉइंट्स चाहिए, x1 y1 x2 y2 जो प्लॉट किए हैं वो थे क्या क्या, व्हाट इज द पॉइंट। देन देयर इज एरर बार, ग्रिड लाइन, दिस एंड दैट। तो ओके, यू कैन इंसर्ट लीजेंड ऑल्सो कि क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है। फाइनली देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रेंड लाइन। इफ आई check this trend line, and what do you see? As the name suggests, we have a trend line which is showing me that this is broadly the trend, that how sales is varying with marketing budget. यार कोरिलेशन से हम ये देख चुके हैं ऑलरेडी दैट सेल्स इज कोरिलेटेड टू मार्केटिंग बजट। तो कोरिलेशन तो है, ये इंक्रीज होता है वो भी इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज होता है वो भी इंक्रीज होता है।
Now I am inserting a trend line that what is the broadly the trend that how these this is varying. The sales is varying with marketing budget. Everybody got this trend line? All of you got this trend line? Anybody जो पीछे रह गया, कोई पीछे रह गया तो प्लीज बोलिए. So I am assuming everybody is here with me. तो ट्रेंड लाइन तक हम आ गए हैं. अब एक बात बताओ, मेरे को ये पता है that this trend line is representing the broad trend, not exact trend. Now tell me one thing. अगले महीने मेरे को पता है कि बजट कितना रखना है, 250. 250 cuts this line here. Yes or no? और इस लाइन से मैं ड्रॉप डाउन ले लूं, मैं देखूं वेयर दिस data point suggests what intercept does it suggest on y axis. हाँ जी, हो गया फोरकास्ट? नहीं, मेरे कहने का मतलब है लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. यस नो, मालूम है या नहीं मालूम है, बोलो. मैं कह रहा हूं एक ट्रेंड लाइन मेरे को मिला विच रिप्रेजेंट्स द ट्रेंड के अगर मार्केटिंग बजट बढ़ते बढ़ते जाता है तो सेल्स कैसे बढ़ते बढ़ते जा रहा है. ठीक बात है. अगले महीने मुझे बजट क्या रखना है, बजट मैंने रखा है एक्स एक्सिस पे, इसीलिए प्रेडिक्टर को एक्स बोल रहे हैं. टारगेट वेरिएबल रखा है वाई एक्सिस पे, इसीलिए उसको वाई एक्सिस बोल रहे हैं. मैं कह रहा हूं ये लाइन जो ब्रॉडली ट्रेंड दिखा रही है, अगर इसकी इक्वेशन मुझे पता चल जाए, लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, अरे क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं. पढ़ा है. जिनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है वो बोले हैं. क्या बिल्कुल टप्पा नहीं खा रहा है? एटलीस्ट अभी आप लोगों को ज्योमेट्री में एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, वो जब पढ़ेगी वो बाद में पढ़ेगी, लेकिन ये तो मालूम है जनरली हाउ एक लाइन इज रिप्रेजेंटेड दिस वे इन 2D ज्योमेट्री. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर m इज स्लोप, c इज कांस्टेंट और इंटरसेप्ट, ये सब बोलते हैं. अरे बोलो सब लोग यार जल्दी जल्दी. अगर पता है तो बोलो यस पता है, नहीं पता तो ये बोलो कि नहीं पता. हाँ तो बताओ ना, कब बताओगे, जब मैं ख़त्म कर दूंगा इसको. अगर नहीं पता तो बोलो कि नहीं समझ आया.
anything in two-dimensional geometry which can be represented like x and y. Now a point, there can be a geometric point which will be represented by उसकी x में एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस होना चाहिए और y एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, तो उसी को मैं बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेट्स। तो x एक्सिस पे हमने एक पॉइंट पकड़ा, दिस इज 127 पॉइंट समथिंग, इतना डिस्टेंस x एक्सिस पे, एंड 10 इज डिस्टेंस ऑन y एक्सिस। तो ये कहाँ पहुँचेगा? वन 127 कहीं यहाँ आ रहा होगा, यस और नो? 10 कहीं यहाँ आ रहा होगा, यस और नो? कौन सा डेटा पॉइंट है? हम शायद इसकी बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं। दिस वन, ऐसे तो बनता है डेटा पॉइंट। नाउ व्हाट इज अ लाइन? लाइन इज कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, yes or no? In a way, line is infinite number of points in a pattern. तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लाइन के लिए जनरल इक्वेशन क्या कहते हैं? एम वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम को हम कहते हैं स्लोप ऑफ द लाइन और सी को हम कहते हैं इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। तो एक्स को अगर मैं वेरी कराऊं, एक्स इज व्हाट? एक्स इज इनफाइनाइटली वेरिंग। तो ये मेरे को लाइन कैसे बन जाती है? सपोज देयर इज अ लाइन वेयर m इज इक्वल टू 5, तो हम इस लाइन को कैसे कहने लगे? y इज इक्वल टू 5x प्लस सी, सी में भी 3। हम क्यों कह रहे हैं कि ये लाइन बन जाएगी? अगर मैं x को वेरी कराना शुरू करूं, सपोज x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो y कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा मेरे लिए इस फॉर्मूला के हिसाब से, यस और नो? हमें क्या पता है? लाइन की इक्वेशन पता है, y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। तो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, एक्स इज दिस, प्लस 3। तो y की कैलकुलेशन आ गई। तो x इज 1, y इज 8। और ऐसे x की वैल्यू वेरी करते जाएं तो ये इस तरह से बन जाएगा। फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर विल बी अ वैल्यू ऑफ y। तो ये क्या बन गया? ये वही नहीं बन गया, x1 y1, x2 y2। और जो सोचा था हमने, बहुत सारे ज्योमेट्रिक पॉइंट्स बन गए। इफ आई टेक ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, क्या क्या? x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 1.1, then x maybe is equal to 1.115, 116. Getting my point? There can be infinite values of x possible. So now I will get infinite number of corresponding y values, and finally I will have a straight line. थोड़ा बहुत टपक आ रहा है, शायद बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। जिन लोगों के पास मैथ्स नहीं था 12th में, घबराना मत। जिनके पास था उन्होंने भी कोई तीर नहीं मारा है, पता उन्हें भी नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत क्लैरिटी आया। ठीक है, तो इसी ज्योमेट्री का हम फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो स्कैटर प्लॉट्स आए थे, इनके बेसिस पे मेरे को एक ट्रेंड लाइन दे दी किसने? एक्सेल ने।
ये ट्रेंड लाइन दिस ब्रॉडली रिप्रेजेंट्स द ट्रेंड, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन मेरे को पास एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आता है यहाँ पर, और ये इट इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन की मेरे को जनरल इक्वेशन तो पता है। नाउ थिंक अबाउट इट। जनरल इक्वेशन ये होती है, अगर इसी तरह से y इज इक्वल टू 5x+3, मेरे को इस लाइन के भी m और c पता चल जाए, तो x तो अगले महीने से मुझे पता होगा कितना है, 250 है। और जैसे अभी x पता होने से मैंने y निकाला है, हाँ जी, तो यहाँ भी 250, x की जगह 250 रख के m और c पहले से पता है, y कैलकुलेट हो जाएगा, नहीं क्या? और अगर y कैलकुलेट हो गया तो वही तो फोरकास्ट था, वही तो पूछा था मेरे बॉस ने कि अगले महीने सेल्स कितना होगा अगर बजट इतना रखें तो। हाँ जी, अब कहानी जुड़ रही है थोड़ी थोड़ी। This is called regression analysis. तो अब क्या काम बचा? मेरे को इतना काम बचा कि इस लाइन की इक्वेशन पता चल जाए। तो आओ इक्वेशन निकाल लेते हैं, वो कौन सी बड़ी चीज़ है। When we clicked on chart और यहाँ प्लस साइन पे गए थे और यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन को एक्टिवेट किया था, चेक कर लिया था। ट्रेंड लाइन के जस्ट सामने एक ड्रॉप डाउन एरो आता है। देयर इज ड्रॉप डाउन एरो इन फ्रंट ऑफ ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन तो हमने चेक कर लिया। इस एरो से अगर ड्रॉप डाउन से जाएं, इट इज आस्किंग मी लीनियर, एक्सपोनेंशियल एंड मोर ऑप्शंस, मैनी थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा है, लीनियर, एक्सपोनेंशियल, लीनियर फोरकास्ट, दिस दैट। तो अभी यहाँ पर नहीं जा रहे, बिकॉज आपका कोरिलेशन इस तरह का भी हो सकता है। आपका ये जो ट्रेंड लाइन आया है, इट मे नॉट बी अ लाइन, इट मे बी अ कर्व ऑल्सो। तो फिलहाल तो लाइन ठीक बता रहा है हमारा। तो जब कर्व होता है तो यहाँ से हम एक्सपोनेंशियल या और कुछ भी ले लेते हैं, बट फॉर नाउ लीनियर इज ओके। वी डोंट वी गो टू मोर ऑप्शंस। ट्रेंड लाइन से ड्रॉप डाउन पे आए, ड्रॉप डाउन में बहुत सारे ऑप्शंस थे। वी कम डाउन टू मोर ऑप्शंस, वी क्लिक ऑन दिस मोर ऑप्शंस and let's see what are the more options. In more options there is again this fill and line, again something to you know just play around, चार्ट को अच्छा बनाने के लिए है। then there is a polygon sign, effects, shadow, glow, this that, again जस्ट ट्रेंड लाइन के रिप्रेजेंटेशन के लिए, ट्रेंड लाइन को और प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए। मेरा इंटरेस्ट वो नहीं था, नॉट सर्विंग माई पर्पज। वी कम डाउन टू द थर्ड ऑप्शन विच इज ट्रेंड लाइन ऑप्शन। We click on this trend line option and now it is again asking you several things. What kind of this distribution is? जो आपके स्कैटर प्लॉट आया था, क्या ट्रेंड लाइन उसको सुटेबल लग रही है आपको देख करके? इसकी शक्ल देख के ट्रेंड लाइन सुटेबल लगती है? By for now it is looking like it, looking so. कभी कभी इट मे नॉट बी लीनियर, कभी कभी एक्सपोनेंशियल दिखेगी, कभी लॉगरिथमिक दिखेगी। तो फॉर नाउ हम वो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल लीनियर पे रुकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा ट्रेंड आना चाहिए। वी कैन चूज अ प्रॉपर ट्रेंड, बट फॉर नाउ लीनियर इज लुकिंग गुड। Down below there are several options, and down below there is one option, display equation on chart. You see that? Display equation on chart. All of you can see that? By default it is not checked. If I check this, so I can see the equation of this trend line on my chart.
Everybody here? All of you here? Just tell me quickly. Anybody who is left behind? कोई ऐसा तो नहीं who is left behind? Please tell me quickly. Okay, so I am assuming everybody with me. अगर यहाँ तक आ गए हैं तो बस बचा कुछ नहीं है, काम हो गया। अरे हो गया काम। तुम्हें इस लाइन की इक्वेशन पता है क्या है? y इज इक्वल टू दिस मच x प्लस दिस मच। तो ये जो रिप्रेजेंट हम करने की कोशिश कर रहे थे मेरे को वो मिल गया है। Now I am comfortable enough. हाँ जी, सही बात है ना। अब मेरे से कोई पूछे, अब मेरे से क्या पूछ रहे हैं CEO साहब, that Mr. Analyst or Miss Analyst, this has been our data of marketing budget, this has been our data of actual sales for last 17 months. Next month I am planning to keep the budget at 250 lakhs. What do you say? What is your forecast that how much sales we will make on a very fair idea? I turn my chair to Excel. I do this. मेरे को क्या पता होना चाहिए? Only the value of x. And what is the value of x? It is coming in this cell. Enter. I will turn my chair back to Mr. CEO or Miss CEO that my analysis says, my forecast says, if budget we are keeping budget at 250 lakhs, most probably we will be ending up with sales very near to 16.5 crores. Nice. So this is the facility which Excel provides, and I have used it, heavily in my sales career. अगर किसी ने आप लोगों में से सेल्स में काम किया है तो यू नो इसका अलग ही ताप होता है दैट हाउ कम यू विल फोरकास्ट के इस महीने क्या करके दोगे। बॉस तो चाहता है ताजमहल ले आओ, बॉस को समझाना पड़ेगा ना कि ताजमहल नहीं आएगा, सेल्स आएगा। अब मैं कह रहा हूँ 2 करोड़ का आएगा। अरे कैसा कैसा बताऊँ कि 2 करोड़ का आएगा कि नहीं आएगा। So this is called regression analysis, and this is the stepping stone to your predictive algorithms when we are predicting the future, the near future. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पिछले 2 साल का डेटा देख के अगले साल भर का डेटा बताऊंगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज अगले महीने क्या होगा
अगले महीने क्या होगा, थिंक अबाउट इट। ये मेरा फोरकास्ट था, दिस वॉज नॉट एक्चुअल 18 मंथ, दिस वॉज फोरकास्ट ऑफ 18 मंथ। पता लगा अगले महीने उन्होंने मेरे कहने से 250 बजट जो लगा रहे थे, एंड दे वर एक्सपेक्टिंग 16 करोड़ आएगा, एंड सपोज 16 करोड़ नहीं आया, उससे ज़्यादा या कम आ गया, यू आर वेरी मच पॉसिबल। अरे मैंने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही तो की है, मैं कृष्ण भगवान थोड़ी हो गया हूँ कि मैंने बोला 16.55 होगा तो 16.55 ही होगा। सपोज बजट लगा 250 एंड सेल्स आया सपोज 14 लाख, नहीं आया 16 करोड़, लेकिन यहाँ पर जो कुछ भी हुआ 16 नहीं आया लेकिन 14 तो आया। मे बी इट वॉज क्लोज, मे बी इट वॉज गुड, मे बी इट वॉज नॉट दैट गुड, मे बी इट वॉज सर्टेनली बैड, जो कुछ भी हुआ, बट नाउ इट इज डेटा, एंड दिस डेटा इज अवेलेबल फॉर वॉट, फॉर द फोरकास्ट ऑफ 19th month, yes or no? अब ये डेटा एग्जिस्टिंग डेटा बन गया ना मेरे लिए, तो आई विल नॉट कीप दिस इक्वेशन लाइक बाइबल। what I will do now, this data is also available again, drop everything, drop this nonsense, drop this nonsense. Again I have marketing budget and sales, this time this data is available to me, 18 month जो पहले नहीं था अब वो हो चुका है। Let's see scatter plot, okay, it looks something like this. Let's insert the trend line, so the trend line looks something like this. Let's see क्या इसकी equation change हो गई है, so let's go to more options, in more options again to trend line options, and let's display the equation, and as it happens ये शायद थोड़ी बहुत equation change हो गई होगी, yes or no? So this way the data will be constantly updating, I will be keep on receiving new data, I will keep on sharpening my forecasts according to that. Okay, fair. With this I think I'll conclude Excel. I hope, I can only hope, you are the better judge. I hope काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. Some of you will be like, everything was new. And for every one of you, something was new. I think so, I hope so. You can correct me if I'm wrong. तो कुछ ना कुछ तो सभी ने सीखा होगा एंड ऑफ द डे. You guys already have that, Titanic data set. So आज मेरे को ये सब कवर करना था तो आज उसकी बात नहीं कर पाए, बट मेरे को कुछ करना भी नहीं है उसमें एक्चुअली, इट इज़ फॉर यू टू प्रैक्टिस. Okay, okay, very well then. So on the coming weekend, you can practice on that data set. You can, did you get a chance to see क्या है वो डेटा सेट, किस बारे में बात करता है?
देखा कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, देख लेना। मैक्रो स्पेसिफिक्स, अर्चना, बेसिकली मैक्रो मीन्स, yeah, macro is end of the day coding. If I have to come down to coding, then why I will code in Excel? Then I will do something better with my coding skills. Then I will use R or Python. मैक्रोज अगर करना कर सकते हैं, चलो ठीक है, मैं थोड़ा बहुत बात कर लूँगा मैक्रोज के बारे में, नो प्रॉब्लम। बट दिस इज यूजुअली द आइडिया। अगर मेरे को कोड ही एम्बेड करने हैं तो वाई डू विद एक्सेल, देन मैं नोटबुक यूज़ करूँगा ना। चलो लेकिन एनीवे कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, देख लें। अगेन देखो अर्चना, अगेन अगर ये सब अगर ये सब शुरू कर दिया तो ये क्या कहते हैं, अंत नहीं है फिर इसका। अगर इफ एल्स और मैंने शुरू कर दिया तो फिर अगला क्वेश्चन आएगा कि लूप्स। यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी, क्वेरी एंड नेस्टेड क्वेरी एंड लूप्स एंड नेस्टेड लूप। तो इसलिए सब चीज़ एक्सेल में थोड़ी देख लेंगे यार। और भी छोड़ दो कुछ आगे भी बताने के लिए। दूसरा ट्रेनर जो आएगा वो भी तो कुछ कराएगा। हाँ, सैलरी मैं ही थोड़ी ले रहा हूँ यार, और भी तो ले रहे हैं लोग। चलो ठीक है। एनीबडी एल्स, एनी क्वेश्चंस? Anybody else got any questions? Or are we good to go for today? Okay, seems like seems like done for the day. Chaliye, bye bye guys. Do practice and yeah, rest well, revise well, and return strong after your long weekend. Hopefully, see you there at the center. By today, end of day, you will receive the update. Okay, guys. Bye bye. Take care.